Hello, dear bachcho. I hope you all are safe and healthy inside your homes. It's true that we all are missing our school campus, our school friends and all. But क्या करें अभी इस वक्त ऐसे ही पढ़ना होगा, ऐसे ही बढ़ना होगा क्योंकि हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते. So, of course, studying in school was more fun. So, I've tried to make some change in the method of learning today. Today, we'll learn through a quiz, an interesting quiz. और आप 4 वीडियोस मोशन के ऑलरेडी देख चुके हैं, काफ़ी कुछ सीख चुके हैं. तो आज सिर्फ एक हल्के फुल्के मूड में अपना रीटेस्ट करते हैं, अपने नॉलेज को चेक करते हैं. आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसमें कुछ मोस्टली तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ में फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं. तो हम रेडी हो जाएं, शायद एक पेन और पेपर की भी ज़रूरत पड़े उसके साथ. और फिर मैं अपनी क्विज शुरू करती हूँ. कोशिश कीजिए कि आप 10 सेकंड के अंदर ही आंसर्स दें. उसके बाद मैं फिर आंसर्स आपको बता दूंगी 5 सेकंड्स के अंदर. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. The length of the path traveled by a body is called. The length of the path traveled by a body is called distance or displacement. Yes, the correct answer is it is distance. Distance is the length of the path actually traveled by the body. Like we used to have an example, 3 kilometers and then 4 kilometers. So total path traveled by this is 3 plus 4. Distance traveled is 7 kilometers. Okay. Should we go to the next question? Yes. Miles per hour is the unit of. Miles per hour is the unit of speed, distance, acceleration और displacement. माइल्स पर आवर किसकी यूनिट है? ये भी एक वीडियो में मैंने जब स्पीडोमीटर दिखाया था तो उसमें ये यूनिट था. तो याद कीजिए किसका यूनिट है. दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड. यस, स्पीड इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर because miles is the unit of what? Distance, and hour is the unit of time, and miles upon hour दिख रहा होगा आपको. So distance upon time is speed. I am not mentioning the direction here, so it is only speed. So speed is the correct answer. Next question. An odometer of a vehicle measures what? What does the odometer of a vehicle measure? Does it measure speed or distance or acceleration or all? The correct answer is distance. Yes, the odometer of a vehicle measures distance. Odometer, अगर जो आप कई बार ऐसे अपनी गाड़ी में वो देखते हैं, एक यहाँ पर लिखा रहता है किलोमीटर्स और एक आखिरी वाला बहुत तेजी से नंबर घूमता रहता है. यहाँ पर लिखा रहता है 7600 और यहाँ पर 0 1 2 बहुत तेजी से चलता रहता है. तो ये जो है इसको हम बोलते हैं ओडोमीटर. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर हियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 360 seconds are equal to. 360 seconds are equal. Here you have to convert 360 seconds into hours or minutes. 10 hours, 1 hour, 1 by 10 hours, 30 minutes. The correct answer is yes. I can see on the screen some people are even saying 10 hours. They've done it wrongly. 1 by 10 hour is the correct answer because 360 seconds means 360 divided by आप क्या करेंगे 3600. कई बार मैं बता चुकी हूँ कि अगर सेकंड को आवर्स में करते हैं, एक सेकंड को आवर में करते हैं
तो हम 3600 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3600 से डिवाइड किया हमने, तो वी गेट व्हाट, it converts to hour, and 1 by 10 hour is the correct answer. So 360 seconds is equal to 1 by 10 hours. Okay, the next question. The next question on the screen is meters per second square is the unit of distance, speed, acceleration or velocity. These are the options. Meters per second square is a very easy question. So meter per second square is the unit of. Some people are even saying speed. No, it is not correct. Acceleration is the right answer. Acceleration की यूनिट होती है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर्स पर आवर स्क्वायर या फिर माइल्स पर आवर स्क्वायर भी हो सकती है। कुछ कंट्रीज में माइल्स में डिस्टेंस नापी जा सकती है। तो एक्सेलरेशन डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर, मीटर, माइल्स। स्पीड की यूनिट होती है मीटर्स पर सेकंड एक्सेट्रा। So you must keep in mind what the unit is. A simple question, though it may be, but people do commit mistake when they write acceleration. Acceleration is equal to 2 meters per second. Okay, the next question, seventh question is 54 kilometer per hour is equal to how many meters per second? Convert kilometers per hour into meters per second. किलोमीटर पर आवर ये किसकी यूनिट है? अभी आपने देखा ये है यूनिट ऑफ स्पीड। तो 54 किलोमीटर आपको कल एक कन्वर्जन फैक्टर बताया था। मैं अब सीधे सीधे उसी से करूंगी, बार बार हम 1000 और 3600 का इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चों। तो आंसर आ रहा है आपका, यस द आंसर इज 54 इंटू 5 बाई 18। 18 के टेबल के ही है, देखिए पहले तो 18 का टेबल याद कर लीजिए। 18 1 से 18, 18 2 से 36, 18 3 से 54, 18 4 से 72 and 18 5 से 90। These are some commonly given speeds किलोमीटर पर आवर में, और इसको मीटर पर सेकंड में करना बहुत आसान होता है क्योंकि 18 से कट जाते हैं। तो 18 3 से 54, 3 5 से 15, तो 15 meters per second is the correct answer for this question. Okay, 15 meters per second is the correct answer, not 5 meters per second as some of you have answered. Okay, the next question, the 8th question on the screen is about the circular motion, a body moving in a circle. Suppose I start from here and end here, then if I go around a complete circle and the radius is r, the distance traveled by me is 2 pi r, pi r, 2r and r. Take your time and decide correctly. You have taken a complete circle. So what is the distance traveled? I am not asking the displacement. Displacement is also an expression. So the distance traveled by it is of course 2 pi r, because we have gone to the same point after traveling the whole circle. Suppose कोई पार्क है उसमें आप जॉगिंग कर रहे हैं, पूरा चक्कर काट के वहीं आ जाते हैं, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2 pi r, जो कि होता है circumference of a circle. Okay, so this is your next answer. Next question is 9th question. अपना स्कोर कार्ड बनाते जाइए बच्चों। आपको ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। आखिरी में आपको अपना स्कोर बनाना है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपका ये कंसेप्ट सीधा हो जाएगा तभी आप डेरिवेशन और कठिन न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ पाएंगे। सो स्पीड इज अ डैश क्वांटिटी, स्पीड इज अ डैश क्वांटिटी, स्केलर और अ वेक्टर। मैंने आपको बताया था, पहले हम आंसर का इंतजार कर लें। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस, स्केलर क्वांटिटी यानी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, ठीक है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी मीन्स जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। पहले हम अगला क्वेश्चन देख लें, फिर आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on the screen, 13th question. Which quantity has direction, scalar or vector? Yes children, vector quantity has direction with in addition to the magnitude, in addition to magnitude.
जितनी भी क्वांटिटीज जिसमें हम मैग्नीट्यूड भी बताएं और डायरेक्शन भी बताएं, जैसे मैंने बोला स्पीड, तो स्पीड हो गई 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैंने इसमें जोड़ दिया ईस्ट, इसमें डायरेक्शन जोड़ दी, तो फिर ये बन जाएगी वेलोसिटी, राइट? एंड वेलोसिटी बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? ये छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन आपको क्लियर करना है। ओके, which quantity has a direction? Speed is a scalar quantity. What is velocity? Velocity is a vector quantity. Okay, this question has already been done. Okay, now 13th question. If a body covers 8 meters in every 1 second, its speed is how much? There is a dash here and its acceleration is dash. If a body covers 8 meters in every 1 second, its speed is, you have to fill the blanks with constant, changing or zero. Okay, these are the three options. So, the speed is and the acceleration is. Okay, पहले का answer. If a body covers 8 meters in every 1 second, that means its speed is 8 meters per second. पूरा time उसकी speed नहीं रहेगी. Its speed is constant. It is in uniform motion. Its acceleration is constant. यहाँ तो आ गया constant, लेकिन यहाँ क्या आएगा? उसका acceleration कैसा है? अगर कोई स्पीड हर एक सेकंड में 8 मीटर, फिर अगले सेकंड में फिर 8 मीटर, फिर अगले सेकंड में फिर 8 मीटर, इसका मतलब 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, अगर वो हमेशा बराबर डिस्टेंस पर ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी स्पीड नहीं बदल रही है और उस पर एक्सीलरेटर काम ही नहीं कर रहा है, उसकी स्पीड। So the answer is the acceleration is zero. Most of you have done mistake in this part of the question. The acceleration is zero. There is no acceleration, right? Only if it covers unequal distances every second, then it will be called to be in uniform motion, non-uniform motion or accelerating. Okay. So the next question, 14th question is, if a body starts from rest and reaches a speed of 18 kilometers per hour in 1 second, what is its acceleration? Also try to imagine the graph. I told you how to draw the graph. If a body starts from rest and reaches a speed of 18 kilometers per hour, and please take care of the units. What is the answer? Yes, the right answer is 5 meters per second square. How is it? Acceleration u is 0, v is 18 kilometers per hour, क्योंकि उसकी स्पीड शुरू में वो रेस्ट पे था, फिर 18 kilometers per hour यानी 5 meters per second, and the time taken by it is 1 second. So acceleration is change in speed upon time, v minus u upon t फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से। ये जो आंसर आ गया वो आ गया 5 minus 0 upon 1, यानी कि 5 meters per second square is the correct answer. B is the correct answer. Okay, next question. If a body starts from rest and accelerates to get a speed of 18 km per hour in 1 second, the distance traveled by it is. अब आप पिछले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, वही क्वेश्चन है, आप एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं 5 meters per second square. The distance traveled by it is. The correct answer is 2.5 meters. कैसे? The correct answer कैसे आया? आपको u पता है 0, v जो है उसकी स्पीड है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक्सेलरेशन 18, लेकिन ये स्पीड है, फाइनल स्पीड। टाइम हो गया 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन यही रहा। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट कैन बी फाउंड। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसमें u v और t सब ऐसा आता हो, इसलिए हमको a का जरूरत थी। a मैंने पिछले क्वेश्चन से ले लिया और ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाया, तो मेरा आंसर जो आया वो आया हाफ, ये तो 0 हो गया, हाफ इंटू 5 इंटू t
t square, यानी 1 का स्क्वायर, that is giving me 2.5 meters. Okay students, next question. 2.5 करेक्ट. कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए. छोटा सा न्यूमेरिकल था, सबसे इजी. Okay, the next question has a graph in front of you, and it seems to be a straight line graph. Distance is in यहाँ पे distance था कि velocity, यहाँ पर करेक्शन कर दो. यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देते हैं. इसको हम ले लेंगे वेलोसिटी. वेलोसिटी यहाँ पर है वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी है, और टाइम आपका ले लेते हैं 1 2, यहाँ पर 1 ले लिया, 2 3 ऐसा कुछ. ओके, सो नाउ कैलकुलेट व्हाट इज द एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट 2 seconds. What is the acceleration? Here the answer is 0 kilometer per hour is correct. The answer is not 836 per kilometer hour square. It is 18 kilometer 0 kilometer per hour square, because जहाँ इसका जो अगर u देखें तो u भी 18 था, जब 2 सेकंड बाद देखा तब v भी 18 था. There is no change in speed, that is there is no acceleration. Okay, so अगर ग्राफ सीधा है यानी कि एक्सेलरेशन नहीं है. अच्छा बच्चा, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है. यूनिफॉर्म मोशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन हियर. फिर से बोल दो यूनिफॉर्म. सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. ओके, बेटा वही ग्राफ, लेकिन फिर से अब आपको जो निकालना है, यहाँ पे मैं वेलोसिटी कर रही हूँ 18, और टाइम यहाँ पे हम ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो हम ले लेते हैं 2 seconds. ओके, टाइम है 2 seconds, इधर जाकर यहाँ पे 1 second हो गया और यहाँ 2 seconds हो गया. तो दिस इज द ग्राफ. ओके, 18 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे वेलोसिटी है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको डिस्टेंस निकालना है. अगर आपको याद हो तो यूज कीजिए उस कंसेप्ट को और बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम हियर टिल हियर. The distance traveled in the first 2 seconds in this graph is, of course there is no acceleration here, but the vehicle is going on with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर. 18 किलोमीटर पर आवर को हम 5 मीटर पर सेकेंड भी ले सकते हैं. यहाँ पे हालांकि ज़रूरत नहीं है, नहीं, एक आंसर है मीटर्स में, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये 5 मीटर्स पर सेकेंड है. ओके, सो चेक द आंसर. द डिस्टेंस इज द एरिया, हाइलाइटर, द एरिया अंडर द ग्राफ. दो सेकेंड्स तक के ग्राफ में हमने क्या कर दिया, बारिश कर दी. अब हम हाइलाइटर से मैं बता देती हूँ आपको एरिया कितना है. सो दिस इज द एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, एंड दिस, इसका एरिया जितना होगा वही हमारी डिस्टेंस है. तो कितना एरिया कवर हुआ, एरिया ही डिस्टेंस है. सो डिस्टेंस कवर हुआ लेंथ इनटू ब्रेथ. सो लेंथ इनटू ब्रेथ, द लेंथ इज 5 and the breadth is 2, vice versa also can be. So 10 meters comes out to be the correct answer. This, ठीक है, ये 36 इसलिए किया है कि कई बार आप भूल जाएंगे कि ये सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में. ये दिस वोंट डू विद, अगर आप सेकंड में ले रहे हैं तो जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर्स पर सेकंड में ही लेनी पड़ेगी, मीटर्स पर सेकंड में ही लेनी पड़ेगी. यू कैनॉट यूज किलोमीटर पर आवर विद सेकेंड्स. नो, either you convert this into hours or you convert this into meter per second, right? Okay, next question is the velocity in this graph. There's a graph in front of you, and you have to find out what is the shape telling you. The velocity in this graph is increasing, decreasing, increasing or decreasing or constant. ठीक है बच्चा, ग्राफ जब ऊपर जाता है तो क्या होता है? Yes, the answer is the speed is increasing because the graph is going up.
यहाँ पर उसकी स्पीड 1 थी, 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड 2 हो गई, 3 सेकेंड बाद उसकी स्पीड 3 मीटर्स पर सेकेंड हो गई। तो विद जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेटर का यूज आप कर रहे हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन। अब आपको ये बताना है कि आपने ये तो बता दिया चलो वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर स्पीड बढ़ रही है यानी कि वो डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा होगा, हर बार कुछ अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा। पहले उसकी स्पीड कम थी, कम दूरी चला होगा, फिर उसकी स्पीड बढ़ गई, यहाँ पहुंच गई, यानी उसने कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो पहले 2 सेकेंड्स में यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, ये आप बताइए। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज, एक बार मैं पहले भी क्वेश्चन कर चुकी हूँ, बस उस टाइम पर आपका जो ग्राफ था वो इस तरह का था, तो हमने ये वाला एरिया निकाल लिया था। अब हमारा जो ग्राफ है वो ऐसा है, तो हम फिर से इसके नीचे वाला एरिया निकालेंगे। तो हम कितना एरिया निकालेंगे? 2 सेकेंड्स तक का एरिया। ये जो हमारा एरिया है इसको हम निकाल लेंगे। सो दिस एरिया विल गिव मी, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड जब भी यहाँ v लिखा होना चाहिए, यहाँ t लिखा होना चाहिए, और आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि डिस्टेंस निकालना है यानी कि मैं एरिया निकालूं। तो एरिया निकाल दीजिए। एरिया ये कैसा है? ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया कैसा होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ हाफ इंटू बेस कितना है? 2, और हाइट कितनी है? 2, एंड बोथ आर मीटर पर, दोनों भाई भाई है, एक मीटर पर सेकेंड है, दूसरा सेकेंड है, तो नो नीड टू कन्वर्ट एंड ऑल, सो यू straightforwardly get the answer to be 2 meters. Yes, A is the correct option. A is the correct option, 2 meters बिल्कुल ठीक आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी ग्राफ से है, और अब की बार आपको निकालना है एक्सेलरेशन से। देखिए एक ही ग्राफ से कितना कुछ करना है, और आपको तो बच्चों इससे इक्वेशन और मोशन भी डिराइव करनी है, लेकिन इसलिए आप ग्राफ से बच नहीं सकते। इसीलिए मैं आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस दे रही हूँ हर सेशन में, कि ये 4 लेक्चर्स 5 लेक्चर्स मिला के आप अगर ध्यान से सिंसियरली कर ले, तभी आप आगे फिजिक्स पढ़ पाएंगे। क्योंकि अगला जो चैप्टर है वो है लॉज ऑफ मोशन, उसमें फोर्स कैलकुलेशंस में आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है बार बार एक्सेलरेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन की। सो practice this, master this. The acceleration traveled in first 2 seconds in this graph is, now acceleration जो होता है उसका फॉर्मूला देख लीजिए, v माइनस यू अपॉन टी, और इस ग्राफ में से ढूंढिए v, u और t को ढूंढिए। Okay, let us start. Acceleration. What is your answer? The correct answer is, let me see, I also don't know the answer. First 2 seconds, 2 seconds यानी मैं यहाँ तक आ गई 2 seconds, और मेरा जो आंसर यहाँ पे ये जो मेरी स्पीड है इसको मैं v बोल दूंगी, 2 सेकेंड बाद जो शुरू में मेरी स्पीड थी उसको मैं u बोल दूंगी। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ मेरी स्पीड है 2, यहाँ मैं देख सकती हूँ मेरी स्पीड है 0, तो 2 माइनस 0 अपॉन टाइम जो लगा वो भी है 2, सो इट गिव्स मी 1 meters per second square. इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड और इसकी यूनिट सेकेंड, गिव्स मी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द करेक्ट आंसर इज मीटर पर। व्हाई कैन नॉट इट बी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? बिकॉज द ग्राफ इज नॉट डिक्लाइनिंग लाइक दिस। अगर ऐसा आ रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, अगर ऐसा जा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ऐसा जा रहा है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ओके, so is it clear? Moving on to the next question. 21st question. In a uniform circular motion, ये बेटा लास्ट जो टॉपिक इस चैप्टर में है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट्स नथिंग न्यू, यू हैव स्टडीड इट इन क्लास 8, क्लास 7 एंड ऑल। सो जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम देयर। इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड, एक चक्कर काटने के लिए जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी? नो, then it is called time period. Yes, this is the correct answer. Time period is the correct answer. Then what is frequency? Frequency means आपने 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 यूनिट टाइम में कितने चक्कर काट लिए। जैसे अगर कई बार हम बोलते हैं कि जो है ये 12 RPM है,
तो इसका मतलब होता है 12 रोटेशंस पर मिनट। 1 मिनट में 1200 बार कोई मोटर घूम जाती है, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कितनी बार 1 सेकंड में। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट time period. We represent it by t and its unit is seconds. Next question. The 22nd question is, what is the distance traveled in one revolution of a circle having radius 7 centimeter? What is the distance traveled in one revolution? यहाँ पर हम एक चक्कर अगर काटें, एक चक्कर यानी जहाँ से हम शुरू किए वहीं पर ख़त्म कर दें, तो distance traveled क्या होगा? The distance traveled will be, this is pi, student. This is pi. 7, the answers are 7 pi, 14 pi. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैथ्स में भी शायद आपने पढ़ा होगा कि कोई आदमी अगर यहाँ से शुरू होकर यहीं आ जाए तो कितना revolution. Yes, the distance traveled is 2 pi r. That gives me, the radius is 7 centimeters, so it gives me 2 into pi into 7 in centimeters, gives me 14 pi. Yes, this is the correct answer, 14 pi centimeter. अच्छा, अब इस साथ में ये भी बता दीजिए, what is the displacement in one circle? What is the displacement in one circle? Yes, it is 0. It is 0. When you grow up in class 11th, you will write it like this. The vector displacement is 0 vector, right? Okay. So पूरा चक्कर काटने में हम जहाँ से शुरू हुए थे, इनिशियल पोजीशन जहाँ A थी, फाइनल पोजीशन भी A ही है, तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई वो हो गई 0, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो 2 पाई आर ही होगी। मान लीजिए बच्चों हम आधा सर्कल चलें, यहाँ से यहाँ जाएं B तक, और आधा सर्कल चल के, तो हमारा आंसर क्या होता? फिर हमारा आंसर होता 7 पाई सेंटीमीटर्स। इज इट क्लियर? लेकिन तब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता वो होता इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी और उसका डायरेक्शन, तो वो होता 2 इंटू 7, 14 सेंटीमीटर्स, राइट? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपने अच्छा रिस्पांस किया और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इस क्विज को एक बार और बहुत फास्ट स्पीड पे भी करके देख सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व कर पाते हैं। एंड आई हैव नॉट टेकन वेरी हाई फाई न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, ओनली द बेसिक्स, छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। इवन 11th के बच्चे, 12th के बच्चे भी ये गलतियाँ करते हैं, उन सारी गलतियों को पकड़ते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। Hope it was useful for you. Let us call it a day. Thank you.